chat. Thank you for your time. I represent an organization called Pro Wisdom. We've tried to show you the name and our logo, and we'll not talk about what Pro Wisdom does. We are here to share an experience of 3 professionals whom I know in my life, and one of them is an industry leader in telecom. He is also my boss in Airtel. One of them is my senior colleague in Columbia Business School as a fellow student. She is a business head in a company called IHS. That's a company in Gurgaon. They are into research and consultancy, and they are also into subscription-based model. And my third guest here is Vibha. She is an HR leader. She started off a business of her own after working more than 11 years in the industry. And the reason I have called these people today is that they would be interacting with you about your life questions. They will share what they know about their industry. आप में से human resource पे कोई काम करना चाहता है? I see only partial hands. 1, 2, 3. Okay. Some of you want to work in sales and marketing. Commerce में आप हैं, आगे कुछ sales and marketing में जाना चाहते हैं? How many want to go in sales? A strong yes. I mean, this is a mild yes. Strong yes. Okay. It's a good field for women as well. And बाकी आप लोगों का, I mean, just tell me, I mean, what do you want to do after graduation? I would need another 2-3 volunteers to share candidly. अभी आप graduation कर रहे हैं. Graduation के बाद आप क्या करना चाहते हैं? And I know I have got feedback from 5 or 7 of you, तो मैं आप लोगों के answers लेके आया हूँ. But if I ask you, आप graduation के बाद what would you want to do, ma'am? Journalism. Why does journalism attract you? क्यों अच्छा लगता है आपको? मुझे अच्छा लगता है कि जब रिपोर्टर्स बताते हैं आपको सच्चाई जो हो रहा है देश में या फिर कहीं पर, मुझे अच्छा लगता है जानना वो सब या फिर लोगों को बताना हर चीज़। Great, thank you. आप क्या करना चाहेंगे मैम? सर टीचर, प्रोफेसर। ओके, तो ये प्रोफेशन आपको क्यों एक्साइट करता है? क्या अच्छा लगता है आपको बीइंग अ टीचर और अ प्रोफेसर? टीचर सबसे अच्छा होता है, वो लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें बताता है क्या सही है क्या गलत है। मैम, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन? You can sit and answer, and even if you don't know, you can confidently say I don't know. That's a very good answer. I didn't knew at the time of graduation कि मुझे क्या करना है. So not knowing is a very good answer. And please sit and answer. We are here to interact. Great, honest answer. Thank you. You will hear it from most of us. That's an irony. It's an unfortunate situation. हमें ये नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ और करना क्या. Most of us are just going with the flow. Am I right or not? Yes, sir. But हम लोग जब यहाँ कॉलेज में आते हैं या स्कूल में आते हैं, what is the purpose of education? I mean, is the purpose of education to get a job? Yes, sir. Okay. Is it to get married? No. Is it to have a successful life? Yes, sir. Or is there no option कि स्कूल के बाद ग्रेजुएशन तो करना ही है, इसमें क्या करें? करना तो है ही है. But that is the fact because we don't have any other option but to go to college. But जब आप कॉलेज आते हैं, that's the 3 years, the best 3 years of your life. आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए to have education here. And कॉलेज से किसी को जॉब नहीं मिलती. मुझे तो नहीं मिली. अब अगर मिलनी शुरू हो गई है तो बहुत अच्छी बात है. बट स्टडी से किसी को जॉब नहीं मिलती. आपको सिर्फ नॉलेज मिलता है, एक थिंकिंग माइंडसेट आपका चेंज होता है. तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पढ़ने से या कोई कोर्स करने से मुझे प्लेसमेंट या जॉब मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, बहुत छोटा पैकेज पे जॉब मिलेगा, आप एंजॉय नहीं करेंगे. बट पर्पस टू एजुकेशन इज टू फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट. जब हमारा टेस्ट होता है तो हमें बताया जाता है क्या चीज़ हमने गलत करी. ये भी हमें पता चलता है हमने क्या चीज़ अच्छी करी. व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? हाँ जी, एक सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है आपको. ओके, अकाउंट्स. आपको मैम? मुझे सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है. थैंक यू, थैंक्स फॉर कैंडिड आंसर. आई मीन जरूरी नहीं है कि सबको पसंद हो. आपको मैम? बिजनेस स्टडीज. सो बिजनेस स्टडीज आपको अट्रैक्ट करता है क्योंकि आपको समझ आता है.
और आपको लगता है कि आप समझा भी सकते हो किसी को बिजनेस स्टडीज, एंड डू यू फील कि बाकी सब्जेक्ट से आप इस पर ज़्यादा अच्छा स्कोर भी करते हो? सो focus on that subject very well. I mean, be the master of one subject and you can create a career or a profession or an employment in that one subject. India is now the market for the world in terms of talent. तो अगर हम लोगों के लिए लेबर इकोनॉमी ही बनते रहेंगे, कॉल सेंटर्स में या बीपीओ में ही काम करेंगे, तो वी विल ऑलवेज बी कॉस्ट सेंटर. कि यूएस में किसी को $2000 देना है, उससे अच्छा इंडिया में $500 दो. $500 कितना हुआ? 30,000 रुपीज. और बहुत अच्छी सैलरी है इंडिया में. तो कॉस्ट सेंटर नहीं बनना है कभी भी, नॉलेज सेंटर बनना है. आपको जो बेस्ट आता है, बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो यू नो, जॉब शुड नॉट बी आवर टारगेट. इट इज गुड टू हैव अ जॉब, बट इट इज बेटर टू हैव अ गोल कि आपको जॉब क्यों करनी है, आपको वो सब्जेक्ट क्यों पसंद है, आप पॉलिटिकल साइंस क्यों अच्छा लगता है आपको, आप जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं. बट देन डोंट लीव विद इनिशियल स्ट्रगल. आपको आएगा, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे लोग बोलेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप जर्नलिज्म में आप कुछ कर नहीं पाओगे. बट डोंट गिव अप. अगर आपको लगता है जर्नलिज्म आप अच्छा कर सकते हो, देन गिव योरसेल्फ 10 to 15 years. अर्ली सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है. गिव योर करियर और प्रोफेशन 10 to 15 years at least, and then see what you can make of yourself. हमारा ऑब्जेक्टिव लाइफ कितनी होती है ऑन एवरेज. सो यू नो, लाइफ इज अ गिफ्ट. I realized it after 16 years of working. So I worked in various companies. मैंने जॉब बहुत जल्दी शुरू करी, 19 साल का था. I wanted to earn money. I wanted to help my family grow. And I also wanted to marry my girlfriend. तो मुझे लगा अगर मैं MBA पढ़ने के चला गया तो she may get married. तो मुझे जॉब जल्दी शुरू कर देनी चाहिए. So I started working when I was 19. 16 साल काम करा, पता ही नहीं चला. और जब आप जॉब शुरू करते हो, you start earning money. और money increases every year. वो छोड़ा नहीं जाता फिर आपके सारे गोल्स, सारी एम्बिशन, सारे पैशन सब्जेक्ट के आप भूल जाते हो. आप बोलते हो अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं ये जॉब भी कर लूँगी, ये रोल भी, ये असाइनमेंट भी कर लूँगी. बट आप इंजॉय करना उसको धीरे धीरे छोड़ देते हो. इन दी लॉन्ग रन जब आप 30s में या 40s में जाओगे, व्हाट विल एक्साइट यू मोर इज दैट कि आपको पैसे कम भी मिल रहे हैं, बट आप काम वो कर रहे हो जो आपको इंजॉयमेंट दे रहा है. You can be a freelancer, you can be a journalist, you can be a painter, you can be a web designer, you can start your home kitchen service, you can start your HR consultancy, you can start a sales and marketing training, anything. But आपको पता होना चाहिए कि मुझे अच्छा क्या लगता है, और हमें बहुत साल लग जाते हैं पता करने में कि हमें अच्छा क्या लगता है. How do we know what we are good at? That was a question by a lot of people. You know, so one girl asked me कि हमें पता कैसे चले हम किस चीज़ में अच्छे हैं. I mean, who was the one? Shaheen, if you could help me. Sure. Yeah, there was one who asked me. She's not present. She is not present. Okay. So Shaheen also had a question that हमें लोग मिलते हैं सेमिनार्स में या किसी भी फंक्शन या जॉब के बारे में बताते हैं बहुत अच्छा है, मेरिट्स बताते हैं, डीमेरिट्स कोई नहीं बताता, और हमें ये भी नहीं बताता इस प्रोफेशन में हम जाएं कैसे. कितना टाइम लगता है. That is what people here would want to tell you, and they would also tell you their story. Their story is also like your story. So you know, I would tell you when I was 19, मेरे साथ क्या हुआ, but that will be the last. So I'll invite one of our delegates, Vibha, on the stage to share her story. I also found my life partner in a U special, so it was a U special romance. आजकल तो यूनिवर्सिटी स्पेशल बस चलती नहीं है, but तब चला करती थी. So you know, the other thing which I value is कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू देता है. You know, once you have a good life partner, आपकी लाइफ बहुत easy हो जाती है. So you know, at a salary of X, which I was earning till April, now I am earning 0. But उससे मेरी family में कोई फर्क नहीं पड़ा है. So having a good life partner who understands you is very very important. और लाइफ की जर्नी बहुत easy हो जाती है अगर आपका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है और आपको कॉम्प्लीमेंट करता है उन स्किल्स में जो आप लैक करते हो. हमें बहुत लोगों ने बोला था, मौसमी को, मुझे, कि आप इतने अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने में तो एक और फ्लैट ले सकते हो आप, बिकॉज यू नो फ्लैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. बट हम कई बार ये क्यों सोचते हैं कि हम अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है. यू आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ. हैव कॉन्फिडेंस इन यू, हैव कॉन्फिडेंस इन वॉट यू वॉन्ट टू डू. मैंने 16 साल काम करा टेलीकॉम में, पैसा भी कमाया, बॉसेस से डांट भी खाई, बॉसेस से एप्रिसिएशन भी ली, प्राइजेस भी लिए, बट देन आई वाज अर्निंग मनी. आई वाज नॉट हैप्पी. That was not my full capability. I have one life, 70 years,
और किसी ने मुझे डरा दिया 60 ईयर्स। तो मेरा तो अभी आई एम 36 नाउ, अब तो 34 रह गया है। तो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि मुझे लाइफ जीनी है। आई मीन आई एम नॉट लिविंग टू डाई, आई एम डाइंग टू लिव। तो मुझे 60 का वेट नहीं करना है। जो हो रहा है मेरे साथ वो तो ये बेसिक जो भी चीजें होती है हम सबके साथ वो होती रहेंगी। कैन आई बी द बेस्ट आई वांट टू बी? कैन आई बी द बेस्ट आई कैन बी? सो यू नो आई वांट माई सेल्फ कि मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट ना बोलूँ कि मैं ये कर सकता था, करा नहीं। सो आई हैव टेकन अ रिस्क, आई हैव लेफ्ट माई जॉब एंड आई एम ट्राइंग कि जो मेरी पढ़ाई है अगर मुझे आता है, मैंने MBA करा है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिजनेस चलाना आना चाहिए ना MBA को। मैं वो टेस्ट कर रहा हूँ कि MBA शुड नॉट बी ए DGM सेल्स। MBA मतलब आपको बिजनेस जीरो से खड़ा करना आना चाहिए। अभी प्रॉब्लम आ रही है, अभी कस्टमर से बात करने में प्रॉब्लम होता है। वो पूछते हैं आपके कोई कस्टमर्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपने काम करा है, कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई रेफरेंस है। चैलेंज है। बट MBA क्यों करा मैंने? जॉब करने के लिए नहीं, MBA करा बिजनेस करने के लिए और अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो वो चैलेंज मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक ही लाइफ है एंड आप किसी को अकाउंटेबल, किसी को आंसरेबल नहीं है। यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ फर्स्ट। आपका नाम मैं जान सकता हूँ? गरिमा। So Garima, you are answerable to only you. Can you be the best Garima? I mean, your benchmark is not me or anyone else. Be the best what you can be, and have that confidence कि मैं जो सोच रही हूँ मैं वो कर लूँगी. Have that zid, have that willpower. That is what we are trying to bring. So you know, last 5 minutes. Any questions? We have our delegates. I mean, Vibha, Moshmi, Ramesh, and you also have 5 minutes before your lab class. So please shout out any questions. And what we all see is that a lot of young women want to work but leave a lot of hard work for their future husbands. And there is a lot of education which you have brought up. तो लड़के लड़की बराबर पढ़ाई करते हैं, बराबर education लेते हैं, but a lot of women don't pursue their career. India is at a stage जहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की population बहुत healthy है, young है, but अगर 50% इंडिया की population काम नहीं करेगी तो कौन आपको जॉब्स कौन देगा? आई मीन जॉब्स कौन देगा? जॉब्स हम देंगे ना। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, आप घर से काम करो। अगर पेरेंट्स बोलते हैं बाहर नहीं जाना, कुछ भी करो, बट आपने जो पढ़ाई करी है, डोंट स्टडी ओनली टू गेट मैरिड। You have an equal talent or even a much higher talent. Women are very good leaders. They have stronger emotional connect, as we have seen in our organization. And there are a lot of organizations which give more weightage कि हमें woman employee hire करना है। आप आज अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्लीज डोंट लूज द क्वालिटी ऑफ योर एजुकेशन आफ्टर 3-4 years कि मैंने पढ़ाई तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करी। यू आर एन इक्वल वर्क फोर्स इन इंडिया। तो अगर 50% इंडिया काम नहीं करेगा, इंडिया विल नॉट ग्रो। यू हैव टू क्रिएट जॉब्स एंड यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम, यू हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स, पार्ट टाइम कीजिए, बट प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट योर एजुकेशन। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप में बहुत टैलेंट है, do something of this talent so that after 10-15 years we are an audience and you are giving a session to us, so we'll be proud of you. Thank you.